Hi students. So today we are going to start with chapter 1, that is some basic concepts of chemistry. So this video is a good opportunity for those जिन्होंने late join किया है या जिनको है कि मैम हमें chapter 1 के concepts clear नहीं है. So they can refer this video. So as we are starting with some basic concepts of chemistry, so it is very important to know what chemistry is all about. Okay, so if we go by the definition, chemistry is that branch of science which deals with matter. ठीक है, आपने 10th तक पढ़ा होगा कि मैटर क्या होता है. सो मैटर इज एनीथिंग दैट occupies space and has mass. So when we say that chemistry is that branch of science which deals with matter, so it does not deal with the matter from outside. We have to deal with the composition of matter. Matter किस चीज से बना है, and also the properties of the matter, and what are the changes that matter undergo. For example, you have seen that solid changes to liquid and liquid changes to gas. So matter keeps on undergoing changes. Those changes can be physical also, like solid is a physical state, so when it is changing to liquid state or gas state is a physical change. But sometimes you have seen the reactions, like suppose you have carbon, it's a matter, and it is reacting with oxygen to form CO2, so it's a chemical change. So chemistry is that branch of science which deals with matter and the changes that matter undergo. And also there are certain laws that govern these changes. तो तीन चीजों के साथ केमिस्ट्री डील करती है. It deals with composition of matter, यानी कि मैटर किन चीजों से बना है. चेंजेस दैट मैटर अंडरगोज, वो कौन से चेंजेस हैं जो उस मैटर में आते हैं, बी दैट फिजिकल चेंज और दैट केमिकल चेंज. एंड देन फाइनली द लॉज दैट गवर्न दीज चेंजेस, बिकॉज यू नो दैट पूरी दुनिया लॉज से चल रही है. एवरीथिंग अराउंड अस इज लॉजिकल. सो इफ अ मैटर इज अंडरगोइंग एनी फिजिकल चेंज, देयर इज सर्टेन लॉ. ऐसा नहीं हो सकता कि आपने रिएक्टेंट कम लिए हैं प्रोडक्ट ज्यादा बन जाए, या रिएक्टेंट कम लिए हैं प्रोडक्ट कम रह जाए. इट हैज टू obey the law of conservation of mass. So obviously we will be studying those laws one by one. So this is as per the definition that chemistry deals with matter composition, यानी कि मैटर किस चीज का बना है, एटम्स का बना है, मॉलिक्यूल्स का बना है, that you know from your previous knowledge. And then what are the changes. क्या मैटर हमेशा कांस्टेंट रहता है? No, we have seen in our day-to-day life that matter keeps on undergoing change, be that physical and chemical change. And finally the laws, वो कौन से laws हैं जो उसको govern करते हैं when that particular change has to happen. Okay. So now if you ask me that from question point of view, nobody is going to ask you that what is the definition of chemistry. Okay, but because we are dealing with the chapter 1 whose name is some basic concepts of chemistry, so it is very important to know that what chemistry is all about. Okay, so now because the definition itself says कि chemistry matter के साथ deal करती है, तो matter क्या है उसकी definition हम already लिख चुके हैं कि anything that occupies space and has mass. And this is the definition जो आप अपने previous classes में भी पढ़ चुके हैं कि anything जिसकी कुछ mass हो और जो occupy space occupy करे, that is what it is, a matter. Now air around us is a matter. Water which we drink is a matter. Similarly, anything which is around you, which can be felt by any of your 5 sense organs. जरूरी नहीं है कि मैटर हमें दिखना चाहिए. एयर वी कैन नॉट सी, बट यस डेफिनेटली वी कैन फील इट. तो कुछ भी हमारे आसपास है जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम सेंस कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट इट इज, मैटर. Okay, so again, what is a matter? So now we are going to deal with the classification of matter, क्योंकि हमारी पूरी डिस्कशन मैटर पर रहनी है. केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट
स्टडिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर, सो ऑफ कोर्स वी शुड नो कि मैटर कितनी तरह का हो सकता है। तो मैटर को हमने दो तरीके से क्लासीफाई करके रखा हुआ है। देयर लाइक टू काइंड ऑफ क्लासिफिकेशंस। ब्रॉड क्लासिफिकेशन की बात करें तो दो ही क्लासिफिकेशन है। जब हम मैटर को देखते हैं या तो हम उसको फिजिकल स्टेट के बेस पे क्लासीफाई करते हैं कि वो दिखने में कैसा है, सॉलिड दिख रहा है आपको, लिक्विड दिख रहा है या गैस दिख रहा है। सो व्हेन वी आर क्लासिफाइंग द मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल स्टेट, तो वो उसकी फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंडर आता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन। एंड द सेकेंड क्लासिफिकेशन इज द केमिकल क्लासिफिकेशन। एंड व्हेन यू आर क्लासिफाइंग द मैटर केमिकली, तो हमें देखना पड़ता है कि वो किन चीज़ों से बना है। इज इट मेड अप ऑफ प्योर काइंड ऑफ सब्सटेंस और इट इज a mixture? Okay, so the broad classification of matter is two types. One is the classifying the matter on the physical basis and second classifying it on the chemical. So अगर हम फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो आपको दिखने में मैटर कैसा दिखता है? या तो आपको सॉलिड दिखेगा, या तो वो आपको लिक्विड दिखेगा, या आपको गैस दिखेगा। मतलब अगर हम ब्रॉडली बात करें तो हमारे पास तीन तरह के मैटर्स होते हैं अगर हम उसको फिजिकली क्लासीफाई करते हैं। दैट इज आइदर when we look at it, it looks like a solid, or it looks like a liquid, or it looks like a gas. So classifying matter on the physical basis, matter तीन तरह का होता है, solid, liquid and gas. And you know that what is a solid, what is a liquid, what is a gas. But अगर हम chemically बात करें, when a substance is said to be solid, कब आप बोलोगे कि yes, you know, this matter is going to be in the solid state? If the molecules of a matter are tightly packed. डायग्राम में भी आपको दिख रहा है, अगर आपके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, पर्टिकुलरली मॉलिक्यूल्स नहीं बोलेंगे क्योंकि किसी मैटर के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, इट कुड बी मॉलिक्यूल्स और इट कुड बी आयंस, डिपेंडिंग अपॉन कि वो मैटर क्या है। तो व्हाट द वर्ड वी आर गोइंग टू यूज इज कि अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो भी पार्टिकल्स का वो मैटर बना है, अगर इफ दे आर टाइटली पैक्ड, अगर वो टाइटली पैक्ड है तो वो मैटर सॉलिड स्टेट में होगा। ओके, सो intermolecular forces spaces are minimum. We can say that in solid, intermolecular spaces are minimum. Now why the intermolecular forces spaces are minimum? ऐसा क्यों है कि intermolecular spaces है ही नहीं? बिकॉज इनके अंदर जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि मॉलिक्यूल्स कैन नॉट मूव हेयर एंड देयर। दैट इज द रीजन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस मिनिमम होती हैं। तो दो पॉइंट्स आपको जो सॉलिड स्टेट के बारे में याद रखने हैं, या जो आपको पहले से पता ही होंगी, दे आर कि एक तो अ मैटर इज सेड टू बी इन द सॉलिड स्टेट अगर उसके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्पेसेस मिनिमम होती हैं, एंड दैट बिकॉज उनके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होते हैं। ऑब्वियसली अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस मिनिमम होंगे बिकॉज उनके बीच के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है, तो ऑब्वियसली आपको कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नजर नहीं आएगी, एंड सच अ सब्सटेंस और सच अ मैटर इज सेड टू बी इन द सॉलिड स्टेट। एंड दिस इज नॉट समथिंग न्यू, ये आप पहले से पढ़ते आए हो। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू लिक्विड। लिक्विड में क्या होगा कि आपके पास जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच के स्पेसेस सॉलिड से ज्यादा होंगे। दे आर नॉट सो टाइटली पैक्ड, वो इतने टाइटली पैक्ड नहीं होंगे। ओके, सो द मॉलिक्यूल्स हैव द अबिलिटी टू बी मोबाइल, ठीक है, पार्टिकल्स इधर उधर मूव कर सकते हैं। तो बट इफ यू टॉक अबाउट द गैस, इन गैस द स्पेसेस आर वेरी वेरी लार्ज, एज यू कैन सी मैक्सिमम स्पेसेस जो होती हैं वो गैस के अंदर होते हैं। तो सॉलिड के अंदर आपकी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस क्या थी? मिनिमम। गैस के अंदर क्या होंगी? द डायग्राम इज मेकिंग इट क्लियर। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस क्या होंगी? मैक्सिमम। और लिक्विड्स के अंदर इंटरमीडिएट। दैट मीन्स ना तो स्पेसेस
उतनी कम होंगी जितनी सॉलिड के अंदर थी, ना उतनी ज़्यादा होंगी जितनी गैस के अंदर थी. सो द स्पेसेस आर ग्रेटर दैन द सॉलिड बट लेसर दैन द गैस. और वाई इन द गैस द स्पेसेस आर सो लार्ज? बिकॉज इनके बीच की जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो मिनिमम होती हैं. फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं मॉलिक्यूल्स के बीच में, सो मॉलिक्यूल्स आर मूविंग हेयर एंड देयर. सो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में मैक्सिमम थी वो गैसेस में मिनिमम होने वाली है. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर गोइंग टू बी minimum in case of gases, and of course in liquid it will be intermediate. So you know examples, all the metals like iron, sodium, they are in the solid state. Liquid, you know, water, oil, alcohol, they all are in the liquid state. Example, water, ethanol, oil. And what about gases? Air itself is a mixture of gases, oxygen, nitrogen, carbon dioxide. So this was the physical classification which you have been studying in your previous classes also. So not much focus should be given on this. Now coming to the chemical classification. अब बात करते हैं chemical classification की, कि जब हम मैटर को chemically classify करते हैं तो मैटर दो तरह का होता है. या तो जब आप मैटर को देखते हो तो वो आपको एक प्योर सब्सटेंस की फॉर्म में नजर आता है. एंड व्हेन आई से प्योर, उसका मतलब ये है कि जब हमने उसको केमिकली देखा तो उसमें हमें एक ही तरह के पार्टिकल्स नजर आए, ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स. लाइक वाटर की बात करें तो अगर हम वाटर को केमिकली देखते हैं तो हमें H2O ही दिखता है. देयर इज ऑलवेज H2O मॉलिक्यूल. सो वेदर इट्स अ मॉलिक्यूल बट एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स हैं. सोडियम की बात करें, सोडियम के अंदर अगर हम केमिकली दिखेंगे तो हमें सोडियम के ही एटम्स नजर आएंगे, Na. So whether it is an element sodium or it is a compound water, both are pure. क्योंकि प्योर सब्सटेंस वो है जो एक ही तरह के पार्टिकल्स का बना हुआ है. ये मैटर नहीं करता कि वो पार्टिकल एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं. एटम्स हैं तो एक ही तरह के एटम्स होने चाहिए, मॉलिक्यूल्स हैं तो एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स होने चाहिए. बट देन देयर आर सम सब्सटेंसेस व्हिच आर नॉट प्योर. कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं जो एक ही तरह के पार्टिकल्स के नहीं बने होते. देयर इज अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स या मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो उनको हम मिक्सचर्स बोलते हैं. तो व्हेन वी टॉक अबाउट द केमिकल क्लासिफिकेशन, वी ब्रॉडली क्लासिफाई मैटर इनटू टू टाइप्स. वन इज द प्योर सब्सटेंस एंड द अदर इज द मिक्सचर. तो अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करें, जैसे कि मैं आपको बोल रही थी कि प्योर सब्सटेंस वो है जो एक ही पार्टिकल्स का बना हुआ है, जैसे कि एलिमेंट्स. ऑल द एलिमेंट्स आर प्योर बिकॉज एलिमेंट्स एक ही तरह के पार्टिकल्स के बने होते हैं. टॉक अबाउट सोडियम, टॉक अबाउट मैग्नीशियम, टॉक अबाउट ऑक्सीजन, कोई भी एलिमेंट है वो एक ही तरह के पार्टिकल्स का बना होगा. सो प्योर सब्सटेंस इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स, एलिमेंट एंड कंपाउंड. एलिमेंट्स या कंपाउंड दोनों ही प्योर सब्सटेंसेस के अंडर आते हैं. द ओनली डिफरेंस इज दैट एलिमेंट्स ऐसे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप सोडियम एलिमेंट की बात करते हो तो वो Na एटम्स का बना हुआ है, लेकिन अगर आप ऑक्सीजन एलिमेंट की बात करते हो तो वो O2 मॉलिक्यूल का बना हुआ है. बिकॉज सम एटम्स आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. जैसे सोडियम है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखने की कैपेबिलिटी रखता है, लेकिन ऑक्सीजन एलिमेंट है उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल O एटम्स नहीं हो सकते बिकॉज ऑक्सीजन इज नॉट केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. तो व्हेन यू टॉक अबाउट एलिमेंट भी दो तरह के होते हैं. एक वो एलिमेंट जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स होते हैं लाइक Na, और कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल होते हैं. फॉर एग्जांपल, ऑक्सीजन इज अ एलिमेंट बट इट इज नॉट मेड अप ऑफ एटम, इट इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल O2. लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट कंपाउंड क्या है? कंपाउंड हमेशा it is always made up of two or more atoms combined in a fixed ratio by mass. जब आप किसी कंपाउंड की बात करते हो तो कंपाउंड दो एलिमेंट के एटम से बना होता है बट उसकी रेशियो फिक्स होती है. फॉर एग्जाम्पल, टॉक अबाउट वाटर.
वाटर एक कंपाउंड है और वाटर में हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो 2:18, दैट इज 2:16, दैट इज 1:8 बाय मास। तो वाटर व्हेन यू टॉक अबाउट कंपाउंड, कंपाउंड में ये बोलना बहुत जरूरी होता है कि कंपाउंड किसी भी दो एलिमेंट के एटम से नहीं बना। अगर वो किसी भी दो एलिमेंट के एटम से बना है तो वो एटम्स एक डेफिनेट रेशो में ही कंबाइन होने चाहिए, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर वो रेशो डिफर कर गई तो इट विल बी अ डिफरेंट कंपाउंड। ओके, सो वेदर इट इज अ कंपाउंड मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड रेशो बाय मास or it itself a element, both come under the category of pure substances because element हमेशा एक ही तरह के particles का बना होगा, चाहे वो atoms है चाहे वो molecules हैं, और कंपाउंड भी हमेशा एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स का बना होगा। बट इंपॉर्टेंट ये है कि जब कंपाउंड बनता है बाय कंबाइनिंग टू और मोर एलिमेंट्स, इट हैज टू बी कंबाइनिंग इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको वाटर का एग्जांपल एक्सप्लेन किया। Now coming to the second classification of chemical classification के अंडर जो हमारा सेकेंड टाइप आया था दैट वाज द मिक्सचर्स। अब या तो हमारे पास प्योर सब्सटेंसेस होंगे, बट कुछ सब्सटेंसेस जरूरी नहीं होते हैं कि वो प्योर ही हों, दे कुड बी मिक्सचर्स। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम मिक्सचर्स की बात करें, इफ वी कैरी फॉरवर्ड आवर डिस्कशन टू मिक्सचर्स, तो मिक्सचर्स भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, बट पहले ये जानना जरूरी है कि मिक्सचर्स होते क्या। सो मिक्सचर्स आर दी substances which are formed by two or more components in any ratio। इसमें हमें रेशो फिक्स करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर पे जाके पानी में सॉल्ट इन वाटर डाल के सोल्यूशन बनाते हो, तो उसमें फिक्स नहीं है कि आपको एक ही चम्मच सॉल्ट डालना है। आप एक चम्मच डालो तब भी वो सॉल्ट का सोल्यूशन या सॉल्ट का मिक्सचर बन जाएगा, अगर आप 2 चम्मच डालोगे तब भी वो सॉल्ट का सोल्यूशन या मिक्सचर होगा। तो व्हेन यू टॉक अबाउट मिक्सचर्स, मिक्सचर्स आर आल्सो फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग टू और मोर कंपोनेंट्स बट नॉट इन अ फिक्स्ड रेशो। उसमें रेशो फिक्स होने की जरूरत नहीं होती है। ओके, अब हम मिक्सचर्स की बात करें, मिक्सचर्स को भी फर्दर 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। वन इज द होमोजेनस एंड अनदर इज द हेट्रोजेनस। हमारे पास 2 तरह के मिक्सचर्स होते हैं, एक हमारे पास होते हैं होमोजेनस मिक्सचर, एक होते हैं हेट्रो। अब होमो जैसे कि नाम ही बता रहा है, होमो मतलब सेम, सेम थ्रू आउट। होमो मतलब सेम, और यू कैन ऑल्सो से यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कॉम्पोजिशन। अब हेट्रो का बेस्ट एग्जाम्पल है सॉल्ट इन वाटर। जब आप पानी में नमक डिसॉल्व करके मिक्सचर बनाते हो तो आपको मिक्सचर बनने के बाद वो सेम नजर आता है थ्रू आउट। आपको ऐसा नजर नहीं आता कि सॉल्ट कहीं ज्यादा है कहीं कम है। इफ यू विल थॉरली मिक्स द सॉल्ट इन वाटर इट विल बिकम सेम थ्रू आउट, वो एक जैसा ही नजर आएगा सॉल्ट इन वाटर, एंड ऑल्सो सेम नजर आएगा, दैट इज वन थिंग। ऑल्सो जो होमोजेनस मिक्सचर्स होते हैं उसमें चाहे 2 कंपोनेंट्स हो या 3 कंपोनेंट्स हो, कंपोनेंट्स के बीच में हम कोई बाउंड्रीज नहीं हमें नजर आती कि हाँ यहाँ पे एक कंपोनेंट खत्म हो रहा है, यहाँ से हमारा दूसरा कंपोनेंट शुरू हो रहा है। नो, इट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। Whereas if you talk about hetero में सबसे बड़ी बात यह है कि when you mix two components, वो components mix होने के बाद भी आपको अलग अलग नजर आते हैं। For example, if you mix salt and sand, तो आपको सॉल्ट के पार्टिकल्स अलग नजर आएंगे, सैंड के पार्टिकल्स अलग नजर आएंगे। कहीं पे सॉल्ट की कंपोजिशन ज्यादा होगी, कहीं पे सैंड की कंपोजिशन ज्यादा होगी। तो एक तो इसमें कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म, कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म। हेट्रो में composition is not uniform throughout, and the second is you can see the boundaries between the components। उसमें जो जो कंपोनेंट्स होंगे जिनको आपने मिक्स करा है तो आपको बीच बीच में बाउंड्रीज नजर आएंगी, क्योंकि दिस इज द एंडिंग पॉइंट ऑफ सॉल्ट एंड दिस इज द बिगनिंग ऑफ शुगर, सो दैट इज क्वाइट विजिबल। ओके, सो विद दिस we completed the mixture part।
ओके, सो व्हेन वी वर डूइंग प्योर सब्सटेंसेस में हम जब बात कर रहे थे तो उसमें हमने ये तो डिस्कशन कर ली थी कि प्योर सब्सटेंसेस में हमारे पास 2 कैटेगरीज आती हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, वेदर इट इज एलिमेंट दैट इज आल्सो प्योर, वेदर इट इज कंपाउंड दैट इज आल्सो प्योर। अब एलिमेंट और कंपाउंड्स की भी फर्दर क्लासिफिकेशन करी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट एलिमेंट, आपके पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, बट वो 118 एलिमेंट्स सेम नहीं है, उनमें कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, एंड देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स विच आर मेटलॉइड्स which have the properties of both metals and non metals. Okay, so elements को भी further classify किया जा सकता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें elements की, तो elements can be further of 3 types, metals, non metals and metalloids। तो यू नो दैट मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स के बारे में आपको अपनी प्रीवियस क्लासेस से पता है कि मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं विच आर डक्टाइल, विच आर मेलिएबल, विच हैव लस्टर। तो मेटल्स अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आते हैं, नॉन मेटल्स अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आते हैं। नॉन मेटल्स आर यूजुअली गैसेस विद लो बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, एंड हमारे पास जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर ब्रिटल एंड दे डू नॉट पोजेस लस्टर। ठीक है, एग्जाम्पल्स के तौर पे तुम्हें मेटल्स के एग्जाम्पल पता है, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, दे ऑल आर द मेटल्स। नॉन मेटल्स में हमारे पास जितनी भी गैसेज हैं, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। सो you are already acquainted with what are metals, what are non metals. Herein I'm just telling you this कि जब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं, एलिमेंट्स को फर्दर 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया जा सकता है, एंड द थर्ड बीइंग मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स भी आपको पता है कि हमारे पास कुछ सर्टेन मेटल्स होते हैं जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की तरह होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की तरह होती हैं, एंड इन द पीरियोडिक टेबल देयर इज अ जिगजैग लाइन, जो एक जिगजैग लाइन वहाँ पे प्रेजेंट है जो कि पूरे पीरियोडिक टेबल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करी है। उसी जिगजैग लाइन पे आपको सारे मेटलॉइड्स मिलेंगे। सिमिलरली कंपाउंड्स को भी आप क्लासिफाई कर सकते हो। कंपाउंड्स भी आपको आपकी 10th की नॉलेज तक पता है कि कुछ कंपाउंड्स ऑर्गेनिक होते हैं, कुछ कंपाउंड्स और लाइक इफ यू टॉक अबाउट कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन, कंपाउंड्स भी आप क्लासिफाई कर सकते हो। सर्टेन कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक एंड सर्टेन कंपाउंड्स आर इनऑर्गेनिक। तो मेजर डिफरेंस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आपको पता ही है कि जो हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका जो सोर्स होता है दैट इज नॉन लिविंग, like they are obtained from rocks, minerals, like NaCl। अगर आप नमक की बात करो, NaCl की बात करो, it is obtained from the sea water। तो सी वाटर इसकी जो सोर्स है इट्स नॉन लिविंग। लेकिन जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो सोर्स होता है इट हैज़ टू बी लिविंग, like they are obtained from dead plants and dead animals, and also organic compound का जो main constituent element होता है that is carbon। So all the organic compounds are made up of carbon, and in addition to carbon there can be other elements also। carbon के अलावा there can be sulfur, oxygen, nitrogen, chlorine, etc, but carbon is the main element when you talk about the organic compound। And inorganic, they are obtained from rocks, minerals, and that means its source is non-living। Okay, so all the examples NaCl, CaCl2, CaCO3, limestone, so all these are an examples of inorganic। Okay, तो अब अगर हम बात करें तो इस पार्ट से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, शायद ही कोई क्वेश्चन बनेगा, बट येस बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ चैप्टर 1, इट्स अ पार्ट ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि मैटर होता क्या है, व्हाट इज ऑल अबाउट केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट मैटर, मैटर होता क्या है, कितनी तरह की इसकी क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो मैं आपको क्विक रिकैप्चुलेट देती हूँ कि अगर हम मैटर की बात करें, ब्रॉड क्लासिफिकेशन 2 ही हैं, एक फिजिकल और दूसरी केमिकल। फिजिकली फर्दर 3 टाइप्स की है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ओके, एंड you know what is a solid, what is a liquid, what is a gas from your previous classes also, and also I have given you the brief। and now talking about the chemical classification, chemically हम 2 तरह से मैटर को क्लासीफाई करते हैं, either we have pure और we have mixtures। प्योर की बात करें तो प्योर में हमारे पास दोनों ही प्योर है,
बी इट एलिमेंट बी इट अ कंपाउंड, बिकॉज एलिमेंट भी प्योर कंसिडर होता है, वाटर इज ऑल्सो प्योर, ओनली द डिफरेंस इज अबाउट देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कि क्या वो एटम्स के बने हुए हैं या वो मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं। अगर वो मॉलिक्यूल्स के भी बने हुए हैं तो क्या वो मॉलिक्यूल सेम एटम का है, तो वो एलिमेंट का होगा। लेकिन जो कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक H2O, इट हैज टू बी फॉर्म फ्रॉम टू डिफरेंट एटम्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशो, फिक्स्ड रेशो में होना जरूरी है। उसके बाद हमने बोला द अदर टाइप वाज मिक्सचर्स। मिक्सचर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस, एंड you know what is homogeneous, what is heterogeneous, and then we carry forward our discussion to कि अगर elements और compounds हैं तो further elements को भी classify किया जा सकता है, because it is not possible कि 118 elements that are known so far are of same type. No, you'll get metals, you'll get non-metals, and you'll also get metalloids. टॉकिंग अबाउट कंपाउंड, कंपाउंड भी आप अपनी प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आए हो कि कुछ कंपाउंड्स ऑर्गेनिक होते हैं, कुछ कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक होते हैं। तो कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन करी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सोर्स लिविंग होता है और इनऑर्गेनिक का नॉन लिविंग लाइक रॉक्स, मिनरल्स एटसेट्रा, एंड देन यू नो व्हाट इट इज ऑल अबाउट। तो यहाँ पे हमारे पास मैटर की क्लासिफिकेशन खत्म होती है। नाउ वंस वी फिनिश अबाउट the classification of matter, the second thing is to know about the measurement। जब हम मैटर के साथ डील कर रहे हैं तो अल्टीमेटली हमें मैटर की वी हैव टू डील विद मैटर, वी हैव टू स्टडी इट्स प्रॉपर्टीज, तो हमें बहुत बार मेजरमेंट्स के साथ डील करना पड़ता है। तो जब हम मैटर की किसी भी प्रॉपर्टी को मेजर करते हैं, मैटर की किसी भी प्रॉपर्टीज़ को मेजर करते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को मेजर करने के लिए हमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ की नीड होती है, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ की नीड होती है, जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में हम उनकी मेजरमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल उनका लेंथ, उसका मास, एंड इफ़ वी आर डीलिंग विद द टाइम, इफ़ वी आर डीलिंग विद करंट, तो हमारे पास कुछ 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ डिक्लेयर किया है बाय द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई सिस्टम ने कुछ 7 प्रॉपर्टीज हैं लाइक लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर and amount of substance। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ने, इंटरनेशनल सिस्टम स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट एसआई सिस्टम ने कुछ ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज डिक्लेयर किया है। ऑब्वियसली यू विल बी स्टार्टिंग अबाउट दीज इन डिटेल इन योर फिजिक्स, बट एज ऑफ नाउ यू शुड नो कि ये कुछ ऐसी 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो किसी से डिराइव नहीं हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एरिया की बात करो, एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि जब आप लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करते हो तब जाके एरिया हम किसी चीज का मेजर करते हैं, तो एरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम लेंथ एंड ब्रेथ। बट अगर आप लेंथ की बात करो, व्हेन यू आर मेजरिंग लेंथ ऑफ अ मैटर, इट इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम समथिंग, लेंथ इज इटसेल्फ फंडामेंटल, बिकॉज इसको हम किसी में डिवाइड नहीं कर सकते, ये किसी से बनी नहीं हुई है, इट इज फंडामेंटल इन इट्स ऑन इट्स ओन। तो ऐसे हमारे पास एसआई सिस्टम ने 7 फिजिकल क्वांटिटीज एज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज डिक्लेयर करी हैं। ना सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज डिक्लेयर किया गया है, बल्कि ये भी बताया है कि इनको मेजर करने के लिए व्हाट शुड बी द स्टैंडर्ड यूनिट। लाइक लेंथ की जो एसआई यूनिट डिफाइन करी गई है दैट इज मीटर, मास की केजी, टाइम की सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पेयर्स, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला, टेम्परेचर की केल्विन, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल। एंड ऑल्सो एसआई सिस्टम हैज ऑल्सो डिफाइंड कि 1 मीटर कितना होना चाहिए, बिकॉज इट हैज़ टू बी स्टैंडर्ड। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हमारी कंट्री में 1 मीटर की लेंथ कुछ अलग है एंड वर्ल्ड वाइड 1 मीटर की लेंथ कुछ अलग है। तो एसआई सिस्टम ने एक 1 मीटर कितना होना चाहिए उसको स्टैंडर्ड डिफाइन भी किया गया है। व्हाट इज 1 मीटर, व्हाट इज 1 केजी, व्हाट इज 1 सेकेंड, व्हाट इज 1 एम्पेयर, व्हाट इज 1 कैंडेला, व्हाट इज 1 केल्विन, व्हाट इज 1 मोल। सो दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज जो कि यूज होती हैं किसी भी मैटर की फिजिकल
प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए, एंड ऑल्सो इफ वी आर यूजिंग द SI यूनिट्स, सो दीज शुड बी द यूनिट्स। ओके, इनकी ज़्यादा डिटेल आपको फिजिक्स में आएगी, ठीक है। अभी हम अगर आगे बात करें कि अगर हम इन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर रहे हैं, लाइक आप अगर किसी मैटर की फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हो, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट इट्स एक्यूरेसी, हाउ मच एक्यूरेट दैट मेजरमेंट इज। ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं अपने अगले टॉपिक की, विच इज डीलिंग विद द एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। Because if you are dealing with a matter, if you are measuring it and if that measurement is not accurate, it's of no use. So it is very important to know कि अगर आपने किसी मैटर के साथ डील करते हो, उसकी कुछ प्रॉपर्टी को मेजर किया है, how much accurate it is. Okay, और उस एक्यूरेसी को कैसे मेजर किया जाता है, वो सारे कॉन्सेप्ट्स अब वन बाय वन आएंगे। ओके, बट बिफोर आई गो टू दैट, first of all it is very important to know कि what is the major difference between accuracy and precision. Accuracy और precision में क्या फ़र्क होता है, उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। बहुत बार होता है कि जब आप अपनी लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो, तो यू टेक वन रीडिंग, बट योर टीचर आस्क्स यू टू टेक द मल्टीपल रीडिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि सपोज आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है एंड यू नीड टू मेजर इट्स लेंथ, you need to measure its length, okay, and I know that its true value is 15.1 सेंटीमीटर। ओके, तो मुझे पता है कि इस ऑब्जेक्ट की जो ट्रू वैल्यू है दैट इज 15.1, बट मैं दो अलग अलग स्टूडेंट्स को टास्क दे रही हूँ कि तुमने इस ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करके आनी है, एंड यू हैव टू टेक मिनिमम 3 रीडिंग्स। ओके, तो क्या हुआ, मेरे पास 2 स्टूडेंट्स थे, दोनों ने 3 रीडिंग्स ली। द फर्स्ट 3 रीडिंग्स ऑफ द ए स्टूडेंट, जो ए स्टूडेंट ने पहली 3 रीडिंग्स ली, दैट इज 14.9, 15.0 एंड 15.1। ओके, एंड देन ही टुक इट्स एवरेज, बिकॉज फाइनल वैल्यू विच यू हैव टू रिपोर्ट could be the average of these 3, क्योंकि आपने 3 रीडिंग्स ली हैं और वो तीनों रीडिंग्स अलग अलग हैं, तो इट्स बेटर टू रिपोर्ट द एवरेज ऑफ 3। तो उसने उसकी एवरेज वैल्यू निकाली, एंड लेट्स से इट्स एवरेज 14.9 प्लस 15.0 प्लस 15.1। हाउ यू टेक एवरेज, आप तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड किया, एंड लेट्स से द वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 15.0। Now coming to B student, जो B student ने रीडिंग ली, the reading came out to be 14.8 and then 14.6 and 15.2. Okay, and then he took the average value 14.8 plus 14.6, 15.2 divided by 3, and its value is coming out to be, let's say, 14.7. I am just taking an example. Okay, तो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस आपको नजर आता है। अगर आप ए की रीडिंग्स देखो, अब जब आपने ए की रीडिंग्स देखी कि ए ने आप 3 रीडिंग्स ली हैं, उन 3 रीडिंग्स में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, देयर इज जस्ट अ डिफरेंस ऑफ 0.1। if you look at the first reading, it is 14.9, and the second reading is 15.0, and the third reading is 15.1. so you can say कि ए की ली गई रीडिंग्स में देयर इज हार्डली अ डिफरेंस ऑफ 0.1, सो वी कैन बिलीव कि दीज रीडिंग्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो अगर किसी स्टूडेंट्स की आपस में रीडिंग्स बहुत क्लोज आ रही हैं, ओके, तो हम ऐसे डेटा को बोलते हैं प्रिसाइज, ऐसे डेटा को हम बोलते हैं प्रिसाइज। दैट मीन्स फॉर अ मेजरमेंट और फॉर अ डेटा टू बी प्रिसाइज, इट हैज टू बी क्लोज टू ईच अदर, उसको आपस में क्लोज होना है। ओके, बट क्या ये डेटा एक्यूरेट भी है? एक्यूरेट के लिए हमें उसकी एवरेज वैल्यू देखनी होती है। अगर तो एवरेज वैल्यू इज कमिंग अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ट्रू वैल्यू और एग्जैक्टली इक्वल टू ट्रू वैल्यू, तब हम बोलेंगे कि डेटा एक्यूरेट भी है। तो अब स्टूडेंट ए का डेटा प्रिसाइज तो था, बिकॉज ईच ऑफ द रीडिंग वॉज वेरी क्लोज टू ईच अदर। अगर आप फर्स्ट और सेकेंड रीडिंग को कंपेयर करो या सेकेंड और थर्ड रीडिंग को कंपेयर करो, तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट क्या उसका डेटा एक्यूरेट भी है? तो उसके लिए हमने उसकी एवरेज वैल्यू को चेक किया। द एवरेज वैल्यू इज 15.0, एंड इफ आई कंपेयर इट विद द ट्रू वैल्यू जो मेरे पास ऑलरेडी है,
तो आई कैन मेक आउट कि एवरेज वैल्यू और ट्रू वैल्यू में भी ज़्यादा फर्क नहीं है, तो इसका डेटा एक्यूरेट भी माना जाएगा. So this is the best example to understand the difference between accuracy and precision कि अगर आप किसी डेटा को एक्यूरेट मानना चाहते हो तो आपको उसकी एवरेज वैल्यू को ट्रू वैल्यू से कंपेयर करना होता है, और अगर आप किसी डेटा को प्रिसाइज देखना चाहते हो तो आपको रीडिंग को आपस में कंपेयर करना पड़ता है. दैट इफ द रीडिंग इज क्लोज टू ईच अदर देन यू विल से दैट द मेजरमेंट इज प्रिसाइज. और अगर एवरेज वैल्यू ट्रू वैल्यू के इक्वल है तो डेटा एक्यूरेट भी है. अब बी स्टूडेंट की बात करते हैं. बी स्टूडेंट में जब आपने देखा तो डिफरेंस था. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट और सेकेंड रीडिंग में 0.2 का डिफरेंस है और सेकेंड और थर्ड रीडिंग में 0.6 का डिफरेंस है. आप अगर बी के द्वारा ली गई 3 रीडिंग्स को ही आपस में कंपेयर कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि इसकी खुद की रीडिंग्स में ही बहुत डिफरेंस आ रहा है. Okay, that may be because of human error or that may be because of the device error, whatever is the reason. But आप ये बोल सकते हो कि B is the same student पहले उस चीज की रीडिंग 14.8 दे रहा है, फिर सेम ऑब्जेक्ट की रीडिंग 14.6 दे रहा है और फिर सेम ऑब्जेक्ट की रीडिंग 15.2 दे रहा है. That means the data or the measurement done by B is not precise at all. आप इस measurement को not precise बोलेंगे. बट प्रिसाइज तो नहीं है. क्या एक्यूरेट है? यस, द चांसेस आर देयर कि डेटा प्रिसाइज ना हो बट एक्यूरेट हो जाए, बट उसके लिए आपको एवरेज वैल्यू कंपेयर करनी है. अब आपने एवरेज वैल्यू कंपेयर करी, एवरेज वैल्यू 14.7 आई, ट्रू वैल्यू थी 15.1, इसमें भी काफी डिफरेंस है. ओके, तो आप कहोगे कि एवरेज वैल्यू इज नॉट इक्वल टू ट्रू वैल्यू, तो डेटा इज नॉट एक्यूरेट. तो बहुत बार स्कूल एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपको एक डेटा गिवन होता है, मेजरमेंट डन बाय ए स्टूडेंट, मेजरमेंट डन बाय बी स्टूडेंट, विच ऑफ द डेटा इज प्रिसाइज, इज द डेटा एक्यूरेट टू. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको ऑब्जर्वेशन करके ये बताना पड़ता है कि आपके हिसाब से किस स्टूडेंट के की मेजरमेंट प्रिसाइज है, और अगर वो प्रिसाइज है तो क्या ये ज़रूरी है कि वो एक्यूरेट भी होगी. तो उसके लिए आपको एवरेज वैल्यू को ट्रू वैल्यू से कंपेयर करके आंसर देना होता है. सो मैनी अ टाइम्स आई हैव सीन क्वेश्चंस कमिंग इन योर स्कूल एग्जाम बेस्ड ऑन द प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी. तो मैंने आपको क्वेश्चन जो आता है उसी की फॉर्म में आपको डेटा करके कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है. बट इफ डेटा विल बी गिवन इन द क्वेश्चन यू विल ओनली हैव टू कंपेयर द रीडिंग्स अमंग ईच अदर एंड यू हैव टू कंपेयर द एवरेज वैल्यू विद द ट्रू वैल्यू. सो विद दिस वे वाइंड अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन. ओके, बट क्या हम अगर हमारे पास कोई एक ही डेटा आ जाए, अगर मेरे पास किसी स्टूडेंट ने मुझे एक फाइनल वैल्यू रिपोर्ट कर दी कि मैम माय अकॉर्डिंग टू मी द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 15.12, या फिर किसी और स्टूडेंट ने मेरे पास किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ रिपोर्ट करी 15.123, तो क्या मैं उसकी एक्यूरेसी मेजर करने के लिए ये दिस इज द मेथड आई विल फॉलो? नो. तो उसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का. So after the concept of accuracy and precision, now the next topic is significant figures, which is used to denote the accuracy in a measurement. एक measurement में एक final measurement, आपके पास एक final value आ गई, आपने कुछ भी डिवाइस यूज करके किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का लेट्स से मास निकाला 52.643 kg. अब ये डेटा कितना एक्यूरेट है, ये डेटा कितना एक्यूरेट है, तो मैं उसके लिए आपको एक एग्जांपल देती हूँ. सपोज मेरे पास एक वेइंग मशीन है एंड यू वांट टू मेजर योर ओन वेट. ओके, तो आप कभी मेजर करते हो वेट, तो सपोज आपका वेट आता है 52.643. लेट्स से इसकी जो डिवाइस की एक्यूरेसी है, दिस इज till it is giving you the three digits after the decimal. तो आपको जो उसने वैल्यू दी 52.643, लेकिन आपके घर में एक और मशीन है जिसमें आपने अपना वेट मेजर किया, उससे आपका वेट 52.6 आया, यानी कि उसने आपको जो इंफॉर्मेशन दी है वो डेसिमल के एक ही डिजिट के बाद दी है. तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा डेटा ज्यादा एक्यूरेट है?
ऑफ कोर्स आप बोलोगे कि मैम दिस इज मोर एक्यूरेट बिकॉज इट इज नॉट ओनली टेलिंग मी 52.6 बट इट इज ऑल्सो टेलिंग मी कि 6 के बाद 43 मतलब 600 ग्राम एंड 43.643 मतलब उसने आपको डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स तक इंफॉर्मेशन दी है, बट जो दूसरी वेइंग मशीन है उसने आपको डेसिमल के बाद एक ही डिजिट दी है। ओके ओके, नाउ आपने बोला कि नहीं दिस इज मोर एक्यूरेट मशीन, तो आप यू विल फॉलो दिस, ठीक है। तो आपने देखा कि ठीक है इसमें आपका जो वेट आ रहा है 52.643, ओके, बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड, आपने कहा कि मैं दोबारा करके देखता हूँ। आप दोबारा खड़े तो दोबारा मशीन में जो रीडिंग आई इट केम अप्रोक्सीमेटली सेम, लेकिन व्हाट डिड यू सी कि लास्ट डिजिट थोड़ी फ्लक्चुएट कर रही है। ऐसा होता है कि जब हम किसी भी डिवाइस को यूज करते हैं उसकी जो लास्ट डिजिट होती है इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, है ना। अगर लेट्स से अगर आपकी पहले आपका वेट 52.643 आ रहा था तो देयर आर चांसेस कि अगली बार आपका वेट 52.642 आए, एंड देन आपने दोबारा रीडिंग ली तो थर्ड टाइम आपका वेट 52.645 आ गया। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इज कि अगर आप कोई भी डिवाइस यूज करते हो किसी भी चीज को मेजर करने के लिए, तो उस डिवाइस की जो भी कैपेबिलिटी होती है जहां तक भी उस वैल्यू को देने के लिए, तो वो डिवाइस लास्ट डिजिट हमेशा अनसर्टेन देता है। लास्ट डिजिट ऑफ एनी मेजरमेंट इज ऑलवेज अनसर्टेन, हम श्योर नहीं होते हैं कि क्या वो 3 तक है या 2 है या 5 है, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करते वक्त हम सारे सर्टेन डिजिट्स भी लेते हैं, यानी कि स्टार्टिंग वाले डिजिट्स, और लास्ट की अनसर्टेन डिजिट भी काउंट करते हैं। यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन क्या है